Now here I have to say this is the problem number 7. We want to find out the solution of this given linear equation by using matrix method. So solution have to see. This linear equation is given means 5x plus 2y this is equal to 4. Suppose here this is the 1 and then this is the 7x plus 3y this is equal to 5. Here this is the equation 2. So now we are going to represent this equation on 1 and 2 in matrix form. So in matrix form, we are representing the equation 1 and 2 in this form means this is the 5 and here this is the 2 and then this is the 7 and then this is the 3. And then another matrix that is related to the variable x and y and then this is equal to 4 and then this is the 5. Here suppose this is the matrix A and here this is the matrix. Suppose that we are saying that this is the x and this matrix this is equal to B. So AX this is equal to B. Here suppose this is the equation 3. Now the solution of given linear equation that is related to only this matrix A. So for finding the solution we want to find out the determinant of matrix A. So determinant of matrix A this is equal to 5 2 7 3 or this is equal to 15 minus 14. So here this is the 1. So here I have to see determinant of matrix A this is equal to 1 and this is does not equal to 0. Hence matrix A this is the non-singular. Hence A inverse exists. Now here I have to see the matrix A this is the order 2 by 2 is there. So we want to calculate the inverse of this matrix A. For finding the inverse of matrix A, we want to calculate the cofactor of the each element. So for cofactors of elements of matrix A, so for that we are making here suppose this is the plus, for writing the cofactor here minus and then after this is the minus and here this is the plus. So if A11 is the cofactor of the element of the first row and first column, this is obtained, this is equal to sign here up to see this is the plus and then M11. This is equal to M11 this is obtained after leaving first row and the first column because 5 is the element of the first row and the first column, so this is the 3. Now A12 means the cofactor of the element of the first row and second column means this is the 2. So sign here up to minus and then minor of the element of the first row and the second column. So this is equal to leave first row and second column. So this is the 7. Here this is the minus 7. After that if you see you want to find out the cofactor of the element of the second row and first column means this is the 7. So this is the minus because this is the minus M21 or this is equal to minus leave second row and first column, so this is the 2. So here this is the minus 2. Now A22 this is equal to sign you have to see this is the plus M22 means minor of the element of the second row and second column. So this is equal to what? You have to leave second row and second column, so this is the 5, so plus 5. Now after that we want to find out the adjoint of matrix A by using these cofactors. So adjoint of matrix A this is equal to A11, A12, A21, A22 and then after this is the transpose. Or this is equal to A11 this is the 3, A12 this is the minus 7 and A21 this is the minus 2 and then A22 this is the 5 and then after this is the transpose. Or this is equal to 3 minus 7 and then minus 2 and here this is the 5. So adjoint of matrix A means this is. Now after that we want to find out A inverse. So A inverse this is equal to adjoint A upon determinant of matrix A. So this is equal to adjoint A we are calculated
here this is the matrix 3 minus 2 and then this is the minus 7 and here this is the 5 and then after determinant of A, so determinant of A this is the simply 1 or this is equal to 3 minus 2 minus 7 5. Now A inverse we are calculated. Now you have to see from equation 3. From equation 3 x this is equal to A inverse B. So x we can write here x, this is the xy, and then A inverse that we are calculated, this is the 3 minus 2 minus 7 5, and then after B means B this is the 4 and here this is the 5. Now here we are going to use the concept of the matrix multiplication. So this is x y and here you have to see we are taking the first row and then after first column. So 3 multiplied by 4 this is the 12 and then minus 2 multiplied by 5 means minus 10 and then second row first column minus 7 into 4 minus 28 and then after 5 into 5 means plus 25. This is equal to, here have to see this is the 2 and minus 28 plus 25 this is the minus 3. So this we will get x y and here you have to see this is the 2 minus 3. So x this is equal to 2 and y. Here you have to see this is the problem number 8. We want to solve the given equations by matrix method. So solution have to see. ये इक्वेशन दिया हुआ है मीन्स 2x माइनस वाई दिस इक्वल टू माइनस 2. सपोज दिस इज द इक्वेशन 1 और इधर आपका क्या है 3x प्लस 4y, ये आपका कितना दिया हुआ है 3. ये मान लीजिए इक्वेशन 2. मैट्रिक्स मेथड्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाएंगे. एक आपका जो ये जो वेरिएबल दिया है उसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स जो आपका वेरिएबल्स है उसका, और उसके बाद जो इक्वलिटी मेंटेन करने के बाद मींस आरएचएस साइड में जो आपका दिया हुआ है कांस्टेंट उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे. मतलब कुछ इस तरीके से इधर आपका 2, ये इधर -1, ये 3 और इधर आपका 4, एक मैट्रिक्स है. और इसी के साथ आपका जो वेरिएबल दिया है मीन्स 2 वेरिएबल है तो एक्स वाई. अगर यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये जो आपका एलएचएस साइड में जो चीजें दी है वही आपको बिल्कुल से मिलेंगी. और इधर आपका क्या आरएचएस साइड में ये आपका हो जाएगा -2 और 3. अगर इसको हम लोग क्या माने कि मान लो आपका ये मैट्रिक्स ए है और ये आपका क्या है मैट्रिक्स मान लीजिए एक्स आपका है और ये मैट्रिक्स मान लीजिए बी है, तो ये एक इक्वेशन आपका इस तरीके का बनेगा ए एक्स दिस इक्वल टू बी. और इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो मैट्रिक्स ए है उसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और अगर डिटरमिनेंटल जो वैल्यू है वो आपकी नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी. उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगा के हम लोग ए इनवर्स बी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे. उसके बाद x के स्थान पे x और y रखेंगे. उसके बाद उसको कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से कितना हो जाएगा, इधर आपका ये 2, इधर -1 3 और ये आपका 4. तो इधर आपका हो गया 8 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 into 4 8 और माइनस देन -1 into 3 तो -3 आपका हो गया. और या इसको लिख सकते हैं कितना आपका 8 + 3 और दिस इक्वल टू 11. तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से ये आपका 11 है. दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ए आपका जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. सो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा. ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालना पड़ेगा. और एडजॉइंट
ए निकालने का ये जो आपका मेथड है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो आपका क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट है ये मीन्स A11 है और ये आपका A22 है, इन दोनों को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो इधर आपका 4 आ जाएगा, इधर आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका A12 है और ये जो आपका A21 है इसका साइन चेंज करेंगे। तो ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा और इधर आपका ये 3 है तो ये -3 हो गया। एक मेथड आपका ये है एडजॉइंट निकालने का। एक दूसरा मेथड है बाय यूजिंग द कोफैक्टर दैट यू आर सीन इन क्वेश्चन नंबर 7। सो अब यहाँ पे आपका एडजॉइंट निकल आया है। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए जो आपका आएगा वो आपका ये मैट्रिक्स है 4 1 -3 2 और डिटर्मिनेंट आपका कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये आपका 11 है। तो ये आपका आ गया 1/11 और इधर आपका 4 1 -3 2। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये आपका है कि ए एक्स दिस इक्वल टू बी या x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो अब x के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स वाई, और उसके बाद ए इनवर्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/11 और इधर आपका क्या हो जाएगा 4 1 -3 2 और b आपका क्या है -2 और 3। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये आपका इधर क्या हो गया है आपका एक्स वाई और इधर आपका 1/11 और इधर आपका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। तो 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, 1 इंटू 3 मीन्स +3 और इधर आपका कितना होगा -3 इंटू -2 तो ये आपका हो गया +6 और इधर आपका 2 इंटू 3 दिस इज ऑल्सो +6। तो ये आपका कितना आ गया एक्स वाई और इधर 1/11 ये आपका हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 12। तो ये आपका कितना हुआ एक्स वाई, इधर आपका आएगा -5/11 और ये आएगा 12/11। जब आप कंपेयर करेंगे तो x आएगा -5/11, ये x की वैल्यू हो गई और y ये आएगा 12/11, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। ये प्रॉब्लम नंबर 9 है, मीन्स 4x -3y = 3 और 3x -5y = 7। इसको सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। सोल्यूशन देखते हैं। ये आपका 4x -3y दिस इज 3, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इधर आपका क्या है 3x -5y दिस इज ये 7 मान लीजिए आपका 2 है। तो अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन दिया है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि जो वेरिएबल्स है उसके आपके कोफिशिएंट से रिलेटेड होगा, मीन्स 4 -3 3 -5। उसके बाद आपका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जो कि आपका जो वेरिएबल्स है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो x और y, और उसके बाद इसी इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपका जो कि कांस्टेंट 3 और 7 से होगा। मान लीजिए अगर आपका क्या है ये जो मैट्रिक्स है इसको A बोल दें और ये आपका जो मैट्रिक्स इसको x और ये मैट्रिक्स आपका क्या है B, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है AX दिस इक्वल टू B। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स A है हम लोग उसकी डिटर्मिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंटल वैल्यू नॉन जीरो आए तभी इसका सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स A आपका क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं A डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 -3 3 -5, या ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो ये आपका -20 हो जाएगा और -9 मीन्स +9
तो ये कितना आएगा -11। तो -11 आपका क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए जो है उसके एडजॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है उन सब उसके सारे एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें एडजॉइंट ए मिलता है। या अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स होता है तो एडजॉइंट निकालने का एक आपका सिंपल सा फार्मूला है कि जो A11 है और ए आपका 222 A22 है उसको क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, और जो A12 है और A21 उसके साइन को चेंज करते हैं। तो या तो कोफैक्टर लगा के फिर उसका ट्रांसपोज लेके बनाया जाए, या तो सिंपली जो आपका ट्रिक है उससे यूज किया जाए एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपका सिंपल सा निकाल रहे हैं कि ये जो A11 है और इधर आपका A22 है इसको आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इधर आपका कितना -5 आ गया और इधर आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब उसके बाद जो A12 है और A21 है उसके साइन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे -3 है तो ये +3 हो गया, यहाँ पे 3 है तो -3 हो गया। ये आपका ज्वाइंट हो गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है कोफैक्टर के थ्रू तो A11, A12, A21, A22 कैलकुलेट, आफ्टर दैट फ्रॉम द मैट्रिक्स देन टेक द ट्रांसपोज। सो यहाँ पे आपका एडजॉइंट आपका ए आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे ए इनवर्स। सो ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर एडजॉइंट ए आपका कितना आ गया, तो ये आपका -5, ये 3 और -3 और ये आपका 4, और उसके बाद डिटरमिनेंट आपका कितना है, डिटरमिनेंट दिस -11। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1/11, और इधर आपका आ जाएगा -5, 3 -3 और ये 4। ए इनवर्स निकाल लिए। तो जब ए इनवर्स निकाल लिया तो हम लोग ये कर सकते हैं कि x दिस इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, xy लिख दिया। ए इनवर्स यहां से निकाला हुआ है -1/11, और इधर आपका -5, 3 -3 और 4 हो गया इधर आपका ये। उसके बाद क्या किया है कि बी मैट्रिक्स आपका यहाँ पे है, वो कितना है, 3 और 7। तो अब ये कितना हो जाएगा, -1/11, और इधर हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय मीन्स फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, -5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये आपका कितना हो जाएगा, -15, और उसके बाद आपका क्या है कि +3 और इधर आपका 7, तो ये कितना हो जाएगा, +21। उसके बाद ये -3 +3 तो -9 हो गया। उसके बाद आपका 4 और इधर आपका 7 मीन्स 28। तो अब ये आपका कितना देगा, दिस इज इक्वल टू -1/11, या ये आपका आएगा -15 +21, तो ये आएगा आपका +6, और इधर आपका -9 और ये 28, मतलब ये आएगा 19। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि xy दिस इज इक्वल टू -6/11, और इधर आपका आएगा -19/11। तो x कितना हो जाएगा, -6/11, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, और y आपका कितना हो जाएगा, -19/11, ये y की वैल्यू होगा। Now here to see this is the problem number 10। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू में फिर से निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, 5x + 2y दिस इज 3, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, और इधर आपका क्या है, 3x + 2y दिस इज 5, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन 2। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इस फॉर्म में पहला जो मैट्रिक्स रहेगा जो x और y के कोफिशिएंट्स है उसका से बनाएंगे। ये 5, इधर आपका 2, इधर 3 और इधर आपका 2। फिर उसके बाद आपका जो वेरिएबल्स दिया है x y, 2 वेरिएबल्स का है,
और फिर उसके बाद कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स मीन्स 3 और 5। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, फिर से वही ये मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स आपका बी है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स दिस इज द बी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स है हमने बनाया है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स है आपका नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर डिटर्मिनेंटल वैल्यू ए की 0 होगी तो ये डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स आपका ये है, ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर होगा तो ये जो इक्वेशन है मीन्स इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इधर आपका 5, ये 2, ये 3 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 -6 और ये आपका 4, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की रिक्वायरमेंट होगी। और हम लोग सब जानते हैं कि जो एडजॉइंट आपका मैट्रिक्स जो ए होता है, एडजॉइंट ए, वो क्या होता है कि जो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सब का हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स आता है वही आपका एडजॉइंट ए होता है। या 2x2 के लिए एक आपका ट्रिक होता है, फिर से जो पिछली प्रॉब्लम हमने लगाया था कि जो a11 होता है, a22 होता है, उसको आपस में क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, और जो a21 है मीन्स a12 और a21 है उसका साइन क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। तो कोई दोनों में से कोई एक मेथड लगा के हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो सेकंड मेथड लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सा है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने क्या किया, a11 और a22 को क्या किया, एक्सचेंज किया। चलिए ठीक, इधर 2 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिख दिया। अब उसके बाद ये देखते हैं a12 एलिमेंट को +2 है तो इसको क्या किया, -2 कर दिया। और ये जो आपका क्या है, ये देखिए a21 ये भी +3 है तो इसको -3 कर दिया। तो इधर बहुत आसानी के साथ एडजॉइंट आपका आ गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है को फैक्टर के थ्रू तो कैलकुलेट उससे भी आसानी के साथ आपका हो जाएगा। तो एडजॉइंट है आपका इतना आ गया। अब उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट तो निकाला है, दिस इज 2 और इधर -2 और ये -3 और इधर आपका क्या 5। फिर उसके बाद आपका डिटरमिनेंट कितना है 4, तो इधर 4 लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा 1/4 और ये 2 -2 -3 और 5, इतना आ गया आपका। ठीक, तो जब हमारे पास ए इनवर्स आ गया, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है सिंस ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स से b, और x के प्लेस पे रखेंगे xy और a इनवर्स के प्लेस पे रखेंगे 1/4 2 -2 -3 और 5, और b के स्थान पे क्या रखेंगे आपका 3 और 5। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो इधर 1/4 हो गया और 2 × 3 तो 6 हो गया, -2 × 5 तो -10 हो गया, और इधर आपका कितना होगा 3 × 3 तो -9 और 5 × 5 तो दिस इज +25। इसका मतलब आपका क्या है कि जो xy का जो मैट्रिक्स है ये इक्वल आएगा 1/4 एंड देन ये आपका 6 -10 तो यहाँ पाएगा -4 और इधर आएगा -9 +25 तो ये आएगा आपका +16, या इसको लिख सकते हैं -4/4 और यह लिख सकते हैं 16/4। तो ये आपका कितना आ गया, x और y इधर आपका आएगा -1 और इधर आपका 4। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपका कितना आएगा, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4। यही आपकी x और y की। Here up to see this is the problem number 11
we want to solve these equations, means we want to find out the value of x, y and z by using matrix method. Here first equation what is given, this is the 2x plus y plus z is equal to 1. Suppose this is the 1 and then second one x minus 2y minus z this is equal to 3 by 2. Suppose here this is the 2 and then after this is the 3y minus 5z is equal to 9, means x, the term of x this is missing, so here we are making 0 times of x, this is, so 0x plus 3y minus 5z is equal to 9. Suppose here this is the equation 3. Now for solving this type of linear equations by using matrix concept, so these equations we are going to write in matrix form. So in matrix form, one matrix that is related to the coefficient of x, y, z. So this is the 2, 1, 1, 1, minus 2, minus 1, 0, 3, minus 5. And then another matrix that is related to the variables x, y and then after z. When you are going to multiply, so we will get the same result, means 2x plus y plus z, and then second and third. And here this is equal to 1 and here this is the 3 by 2 and here this is the 9. And that we are saying that this is the, suppose this is the matrix A and here this is the matrix X and here this is the matrix B. So AX this is equal to B. Suppose here this is the equation 4. Now after that we want to find out the determinant of matrix A. So determinant of matrix A, this is equal to 2, 1, 1, 1, minus 2, minus 1, 0, 3, minus 5. So now after that we want to expand this determinant along R1. So expanding along R1. When we are going to expand along R1, so here we are making sign, this is the plus and here minus and then after this is the plus. So this is equal to, you have to see this is the 2 and then subdeterminant after leaving first row and first column. So this is the minus 2, minus 1 and here this is the 3, minus 5. And then after this is the sign minus and plus 1 is given, so 1. And then subdeterminant after leaving first row and second column, so this is the 1, 0 and then after this is the minus 1, minus 5 and then plus 1 and then subdeterminant after leaving first row and third column, means this is the 1, 0, minus 2, 3. This is equal to 2 and then this is the 10, here plus 3 we will get, because minus 1 multiplied by 3 means minus 3, means that is the plus. And here you have to see this is the minus 1 and then minus 5 and then plus 0 and here you have to see this is the 1 and then 3 plus 0. So this is equal to 2 into 13 and then this is the minus 1 into minus 5 and then this is the 1 and here this is the 3. This is equal to 26 plus 5 and then after plus 3. So this is become this is the 31, means this is the 34. And see the determinant of matrix, say this is the 34 and this does not equal to 0. Hence A inverse exists because A is a non-singular matrix. So equation 4 that we can write in the form of this one, x this is equal to A inverse B. Now after that we want to find out the cofactor of the elements of matrix A. So for that we are making here minus and then after this is the plus, here this is the minus and then this is the plus and here minus and then after this is the plus for writing the cofactor of the elements. So if A11 is the cofactor of the element of the first row and first column is 2, so this is equal to sign, you have to see this is the plus and then after minor of the element of the first row and first column,
So this is equal to subdeterminant after leaving first row and the first column. So this is the -2, -1. Here this is the 3, and then after -5. This is equal to here 10, and then after this is the +3. This is equal to 13. -2 multiplied by -5 means +10, and then -1 multiplied by 3. -3 means minus and minus, that is the plus. So this is the 13. Now after that, the cofactor of the element of the first row and second column. So here you see this is the minus sign, and then M12. This is equal to subdeterminant after leaving first row and second column. So this is the 1 0 1 0, and here you see this is the -1 -5 -1 -5. Here minus implement. So this is equal to minus, here -5, and then +0, or simply this is the +5. Now A13 means this is the cofactor of the element of the first row and the third column. So this is equal to, sign up to see this is the plus, so plus M13, leave first row and third columns. So this is the 1 0, and then after this is the -2 3, -2, and here this is the 3. This is equal to 3, and then this is the +0, or this is the 3. Now after that we want to find out the cofactor of the element of the second row and the first column, means this is the 1. So for sign this is the minus and M21, this is equal to minus, and then subdeterminant after leaving first column, and then after this is the second row. So this is the 1 1, and downside this is the 3 -5. So this is equal to minus, and here -5 -3. So this is equal to -5 -3 minus, and means +8. So simply this is the 8. Now after that we want to find out the cofactor of the element of the second row and second column. So this is the -2 means sign, you have to make this is the plus M22. This is equal to subdeterminant after leaving second row and second column, means this and this we are going to leave. So what is the remaining? 2 0 1 -5. So this is the 2, and here this is the 0, and then this is the 1 and -5. So this is equal to -10, and then after this is the 0, so this is the -10. Now after that A23. So A23 sign it to see this is the minus, so minus M23 means minor of the element of the second row and third column. So this is the second row, this is the third column. So what is the remaining? 2 1 0 3. So this is equal to minus 2 1, here this is the 0 3, or this is equal to minus, and here this is the 6 minus 0, so simply -6. Now after that, the cofactor of the element of the third row and first column is +0. So this is equal to plus M31, or this is equal to subdeterminant after leaving third row and first column. So this is the 1 1 -2 -1. So here 1 1 -2 -1. This is equal to -1, and then this is become +2. This is equal to 1. Because 1 multiplied by -1, this is the -1, and 1 multiplied by -2 means -2, and that is become plus, because minus and minus, that is the plus. So -1 + 2, this is the 1. Now A32, this is equal to, sign if you see this is the minus M32, and this is equal to minus, and then subdeterminant after leaving third row and second column, this is the 2 1 1 -1, then this is the 2 1 1 -1, this is equal to minus, and then -2, and here -1. So this is the -3, and that is become plus, so this is the 3. Now A33, this is equal to plus M33, this is equal to subdeterminant after leaving third row and third column. So this is the 2 1 1 -2, this is equal to -4 -1. So this is the -5. Now you have to see cofactor of each element of matrix A we are calculated. After that we want to find out adjoint of matrix A. So for adjoint of matrix A, so this is equal to
A11 this is the 13, and then A12 this is the 5, A13 this is the 3, A21 this is the 8, A22 this is the minus 10, then A23 this is the minus 6, and here then this is the 1, and then this is the 3, and here this is the minus 5, and then transpose. This is equal to, when you are taking the transpose, then first row become first column, so this is the 13, 5, 3, and then second row becomes second column, so here this is the 8, minus 10, minus 6, and then third row become third column is 1, 3, minus 5. This is the adjoint of matrix A. So A inverse, this is equal to adjoint A upon determinant of A. So this is the adjoint means 13, 8, 1, 5, minus 10, 3, 3, minus 6, minus 5, and then determinant of matrix A that we have calculated, this is the 34. Now after that A inverse we have calculated, then from equation 4 we will get, from equation 4 what we will get, x this is equal to A inverse B. So x means this is the simply x, y, and then after this is the z, and then A inverse that we have calculated 1 by 34, and then this is the 13, 8, 1, 5, and then after this is the minus 10, 3, 3, minus 6, minus 5, and then after matrix B this is the 1, and this is the 3 by 2, and then after this is the 9. Now after that if you see, this is the 1 upon 34, here we are using the concept of the matrix multiplication. So what we will get, first one then first column, so 13 into 1 this is the 13, 8 into 3 by 2 means 8 into 3 by 2, this is the 4 means this is the 12, so here plus 12, and then 1 into 3 by, then after 1 into 9, so this is the plus 9. Then second row and first column, this is the 5, and then minus 10 multiplied by 3 by 2 means minus 5, and 3 means minus 15, and 3 into 9 means this is the 27. Here third one first column 3 into 1 means 3, and minus 6 into 3 by 2, so this is the 3, minus 3 into minus 3 means minus 9, and then after minus 5 into 9 means minus 45, or this is equal to 1 by 34, and then after this is the 25 and 25 and 9, this is the 34. Here this is the minus 10 and plus 27 means this is the 17. Here have to see this is the minus 6 and plus 45 means this is the 50 minus 51. This is equal to 34 divided by 34, this is the 1, and 17 upon 34, so this is the 1 by 2, and then after this is the minus 51, and then 34 means minus 51, and then this is the 34, 17 is the common factor, so 17 to the 34 and 17 3s are, so this is the minus 3 by 2. So the value of x, y, z you have to see. So x, y, z, this is equal to 1 by 2, and then this is the 3 by minus 3 by 2. Comparing the coefficients, so x equal to 1, y equal to 1 by 2, and z equal to minus 3 by 2. This is the problem number 12.
three equations are given. We want to solve by matrix method. Suppose here this is the equation 1 and here this is the equation 2 and this is the equation 3. मैट्रिक्स मेथड इसको सॉल्व करने के लिए तीनों इक्वेशंस का हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से बनेगा, मतलब यहाँ 1, ये -1 और इधर आपका 1, यहाँ पे आपका क्या है 2, यहाँ पे 1 है, ये -3, यहाँ पे 1 1 1। एक आपका ये हो गया मैट्रिक्स, और एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि आपका वेरिएबल्स का होगा x, y और z का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस को, तो हमें जो इक्वेशंस का जो LHS साइड है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, और इसको जो कांस्टेंट दिया उसका अलग से मैट्रिक्स, मतलब 4 0 और 2। अगर मान लीजिए ये फिर से वही, अगर ये आपका A मैट्रिक्स हो और ये X हो और ये आपका B है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है AX दिस इज द B। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंटल वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम लोग चेक करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स आपका A नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आपका मिलेगा, मीन्स x, y और z की यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ये आपका हो जाएगा कितना, 1 -1 1, ये 2 1 -3 1 1 1। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए कि R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो साइन यहाँ बनाते हैं, ये आपका प्लस, ये माइनस और ये आपका प्लस। प्लस इसलिए बनाया कि ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट रो मीन्स 1 और फर्स्ट कॉलम 1, 1 + 1 आपका 2 होता है, तो 2 मतलब इवन नंबर है, तो इवन के लिए प्लस। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, मतलब 1 + 2 मतलब 3 के लिए हमने, मतलब 8 है तो उसके लिए माइनस, ये भी आपका इवन आएगा तो प्लस। वैसे अगर यहाँ बनाना है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस और ये माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये साइन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग मैट्रिक्स का जो है उसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं, तो ये साइन आपका बहुत यूजफुल होता है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो R1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन हमने क्या बनाया, प्लस, +1 मीन्स 1। उसके बाद सब डिटरमिनेंट लिखेंगे उस रो और उस कॉलम को छोड़ के, 1 आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसको छोड़े तो कितना आएगा, 1 -3 1 1। उसके बाद आपका क्या साइन क्या है, माइनस है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया -1, तो -1। देन सब डिटरमिनेंट लिखेंगे उस फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2 1 और इधर आपका -3 और 1। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस और 1। उसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाएंगे, उस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब ये आएगा 2 1 1 1। तो ये आपका कितना आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और इधर +3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस आपका हो गया +1, इधर 2 और ये +3 हो गया। इधर आपका कितना आएगा, 1 2 और -1 2 और -1। तो ये आपका 4 हो गया। इधर आपका कितना आएगा, 3 और 2 5 हो गया, मतलब +5। और इधर आपका 1 आएगा मीन्स +1। तो ये आपका कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो अब 10 आ गया मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 10 आ गया मीन्स नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए जो आपका है वो नॉन सिंगुलर हो गया, और नॉन सिंगुलर जब आपका हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ए आपका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो अब नॉन सिंगुलर हो गया, हमें अब निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो आपका मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब कोफैक्टर निकालने के लिए ये जो साइन हमने बनाया है उसका यूज करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि फॉर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो पहला जो कोफैक्टर होगा मीन्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 के लिए, तो ये आपका एक बराबर होगा किसके, साइन क्या है प्लस,
माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका कितना हो जाएगा, वही सब डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए आप, तो 1 माइनस 3 और इधर आपका 1 1, तो ये आपका कितना आ गया 1 प्लस 3 मतलब 4। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे A1 2 मतलब द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड कॉलम, मतलब इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले साइन क्या है, माइनस का है, माइनस लगाया। उसके बाद माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये माइनस आपका हो गया। उसके बाद सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया ये 2 1 और इधर आपका -3 और 1, तो ये आपका आएगा -2 और ये आपका +3 मतलब -5। अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A13 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये आपकी क्या है, ये फर्स्ट रो और ये आपका थर्ड कॉलम। सो कैसे मिलेगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और ये दिस इज इक्वल टू होगा सब डिटरमिनेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका आएगा 2 1 1 1 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 मीन्स -1 तो 1। अब उसके बाद A21 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपकी सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 2 के ऊपर क्या लगा माइनस साइन, तो ये होगा -M21 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका होगा माइनस। उसके बाद सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 -1 1 1 1, तो दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1, तो ये आपका माइनस ऑफ -2 मीन्स 2। उसके बाद A22 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम मीन्स 1 1, this is equal to plus sign and then minor of the element of the second row and second column, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो छोड़ेंगे सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 1, तो ये आपका आएगा 1 1 और उसके बाद 1 1, तो इधर आएगा 1 -1 ये 0। अब उसके बाद A23 आएगा, साइन आपका माइनस है, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो साइन क्या है -M23, तो माइनस सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आएगा यहाँ पे 1 -1 1 1, तो ये आएगा -1 प्लस 1 और ये आएगा -2। उसके बाद A31 साइन आपका प्लस है, तो M31 और दिस इक्वल टू सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग थर्ड रो एंड देन आफ्टर दिस इज द फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो कितना आपका बचेगा -1 1, यहाँ पे 1 -3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज द 3 और -1 मीन्स 2। उसके बाद A32 मीन्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, तो साइन आपका क्या है -M32 और दिस इज द माइनस एंड देन सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 1 2 1 -3, तो यहाँ पर आएगा -3 -2 माइनस और ये आपका -5, यहाँ पे +5। अब उसके बाद A33, तो A33 आपका आएगा प्लस, साइन आपका प्लस है, M33 और सब डिटरमिनेंट आफ्टर लिविंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा 1 -1 2 1, तो ये आएगा 1 और -2, तो ये आएगा 1 + 2 दिस इज द 3।
अब इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ये आपका होगा जितने कोफैक्टर हमने निकाले मीन्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इन सब का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो ये आपका कितना आएगा? A11 4, A12 -5, उसके बाद आपका A13 1, फिर उसके बाद A21 2, A22 0, A23 -2, फिर उसके बाद A31 आपका कितना है? A31 2, A32 आपका है 5 और A33 ये कितना है? 3, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे ट्रांसपोज का। रो और कॉलम आपका इंटरचेंज होगा, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 होगा -5 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाएगा 2 0 -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगा इधर तो 2 5 और 3 आपका आ जाएगा। तो एडजॉइंट आपका आ गया। फिर उसके बाद अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए आपका ये मैट्रिक्स है 4 2 2 -5 0 5 और उसके बाद 1 -2 और 3, और उसके बाद डिटर्मिनेंटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो आपका कितना था? 10 था। तो यहाँ पे आपको 10 आ गया। और इसको लिख सकते हैं 1/10। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, इतना आपका आ गया। अब ए इनवर्स हमने निकाल लिया है और हम लोग जानते हैं सिंस x इक्वल टू आपका होता है ए इनवर्स b, x के स्थान पे लिख सकते हैं x y और z, और इधर आपका आएगा ए इनवर्स 1/10, उसके बाद मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। उसके बाद बी जो आपका मैट्रिक्स था वो था आपका कितना जो है 4 और 0 और आपका 2। अब उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगाएंगे 1/10। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 4 × 4 16, 2 × 0 मीन्स +0 और 2 × 2 मीन्स +4, -5 × 4 मीन्स -20, उसके बाद आपका 0 × 0 मीन्स +0 और 5 × 2 मीन्स +10, 1 × 4 हो जाएगा यहाँ पे -0 और 3 2 जा दिस इज 6। ये आपका हो गया 1/10, दिस इज 20 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे -10 और यहाँ पे आपका 10, और ये हो जाएगा 20/10 मीन्स 2 -1 और ये 1। तो x y z ये आपका कितना आ गया? 2 -1 1। जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। ये आपकी क्या है? x y z की वैल्यू है। Here you have to see this is the problem number 13. 3 equations are given and with matrix method we want to find out the value of x y z. Suppose this is the equation 1, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपके 3 इक्वेशंस दिए हैं इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि आपका किससे रिलेटेड होगा कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड होगा। मतलब ये आपका 2, यहाँ पे 3 और ये आपका 3। फिर उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे 1, ये -2 और ये 1, यहाँ पे 3 -1 -2। एक मैट्रिक्स आपका इसका बन गया। और एक मैट्रिक्स आप और बनाएंगे आपका जो कि जितने भी वेरिएबल्स है उसको कंटेन किए होगा, मतलब x y z।
और उसके बाद एक आपका मैट्रिक्स इक्वल टू जो कि कॉन्स्टेंट्स दिए हैं वो आपका ये कितना हो जाएगा 5 -4 और 3 का। अगर इनको मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वेशंस आपके दिए हैं लेफ्ट साइड पूरा आपका वही मिलेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। नाउ मान लीजिए कि आपका ये जो मैट्रिक्स है इसको A कह रहे हैं और ये जो मैट्रिक्स आपका है ये X है और ये मैट्रिक्स आपका क्या है B है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AX दिस इक्वल टू B। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जो मैट्रिक्स आपका A है इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और डिटरमिनेंटल वैल्यू इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या आपका जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ मीन्स इसकी जो डिटरमिनेंटल वैल्यू है वो नॉन जीरो अगर हो गई तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये जो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका इक्वेशन क्या है 4 है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद b से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंटल वैल्यू आपकी क्या होगी, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 3, यहाँ पे 1, ये -2 और ये 1, यहाँ पे ये 3 -1 और ये -2। अब ये जो आपका डिटरमिनेंट है इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। तो मान लीजिए R1 रो ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलावा जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए साइन आपका ये प्लस है, हम लोग जानते हैं कैसे इसको प्लस माइनस बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस और ये आपका प्लस। तो यहाँ पे आपका 2 एंड उसके बाद आपका सब डिटरमिनेंट किसको छोड़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, -2 1 -1 -2। उसके बाद साइन आपका माइनस है तो -3। उसके बाद सब डिटरमिनेंट आप बनाएंगे किसको छोड़ने के बाद, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो कितना आएगा यहाँ पे 1 3 1 -2। फिर उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे +3 है तो +3। उसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 -2 3 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो गया 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 and then minus here 1 multiplied by -1 means -1 and then after -3 1 multiplied by -2 means -2 and 1 multiplied by 3 means this is the -3 and this is the +3 and -1 then minus and -2 multiplied by 3 this is the -6 this is equal to 2 and here you have to see 4 and then +1, so this is the 5 and -3 into this is the -5 and then +3 here, this is the +6 and -1 this is the 5. So this is equal to what, 10 plus 15 minus and minus this is the plus 15 and then plus 15। तो ये आपका कितना आएगा 15 15 30 and this is the 40। so determinant of A this is equal to 40 and this does not equal to 0, hence A this is the non singular matrix hence A inverse exist। अब आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग सबसे पहले A इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जितने जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स A के सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो फॉर कोफैक्टर
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सटेंड करते हैं। ये साइन आपका माइनस होगा, ये यहाँ पे आपका प्लस, और ये साइन आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कब प्लस और माइनस बनाते हैं। अगर यहाँ पे 2 को देखा जाए, ये जो 2 आपका एलिमेंट है वो किसका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, और रो और कॉलम को ऐड करेंगे मतलब 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमने प्लस लगाया है। यहाँ पाते हैं तो ये आपका जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो 2 + 1 3 जो कि ऑड नंबर है, तो उसके लिए माइनस। तो जो एलिमेंट आपका इवन के लिए है उसके लिए प्लस साइन, और जो ऑड के लिए है उसके लिए हमने क्या लगाया, माइनस साइन। ऐसा इसलिए किया है कि कोफैक्टर हमें निकालना है। मान लीजिए कि आपका क्या है कि A11 आपका कोफैक्टर है किसका, जो है फर्स्ट एलिमेंट का, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो 2 का कोफैक्टर हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग साइन ऊपर क्या है प्लस, उसके बाद माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपको कैसे मिलेगा, सब डिटरमिनेंट होगा, उस रो और उस कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, तो आपका कितना आएगा, -2 1, यहाँ पे -1 -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, -2 मीन्स दिस इज द 4, और माइनस साइन 1 × -1 मतलब -1 हो जाएगा इधर। तो ये आएगा 4 + 1 दिस इज इक्वल टू 5। ऐसे अब निकालेंगे कि A12 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है, 3 है, 3 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -M12 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये आपका कितना होगा, माइनस, उसके बाद आपका सब डिटरमिनेंट लिखेंगे, उस रो मतलब पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, पहला रो इधर और दूसरा कॉलम इधर, तो बचेगा क्या 1 3, और इधर आपका बचेगा 1 और ये -2। तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 1 × -2 और 1 × 3, तो ये आपका -3। तो ये आपका हो गया माइनस, और उसके बाद यहाँ पे आपका -5, ये भी आपका हो जाएगा +5। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स A13। तो A13 में आपका कौन सा आएगा, ये 3 आएगा, 3 के ऊपर क्या साइन लगाया, प्लस M माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये कैसे मिलेगा, पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ रहे हैं, छोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 1 -2, और इधर आपका 3, इधर आपका -1 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, तो -1 माइनस ऑफ 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे -6। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, -1 + 6, ये भी आपका 5 आ गया। अब उसके बाद हम लोग को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज A21। तो A21 में आपका 1 है, 1 के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है, तो -M21। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस, उसके बाद सब डिटरमिनेंट लगाएंगे, उस रो मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे। तो जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो ऊपर 3 3, और नीचे आएगा आपका -1 -2। तो ये आपका कितना हो गया, माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × -2, तो -6 हो जाएगा, माइनस साइन लगाते हैं, 3 × -1, तो यहाँ पे -3 हो गया। फिर उसके बाद ये माइनस, यहाँ पे आपका -6 + 3, तो आएगा -3 मीन्स ये हो जाएगा +3, और सिंपली दिस इज द 3। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे A22। तो A22 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका होगा, यहाँ पे साइन आपका क्या है, प्लस M22। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सब डिटरमिनेंट, आप सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़िए, तो कितना आएगा 2, इधर आपका 3, इधर आपका 3, और ये आपका कितना -2। तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -4, और ये आपका -9। तो ये आपका आ गया -13। फिर उसके बाद
3, तो 8 2 3 कैलकुलेट करने के लिए साइन आपका माइनस है, m 2 3 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपका कितना आएगा माइनस, उसके बाद आपका सब डिटरमिनेंट लिखेंगे, ये आपका दूसरा रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 और इसके बाद आएगा 3 -1, तो ये आपका कितना हो गया -2 -9, तो आएगा माइनस और -11 और ये +11 आ गया। अब उसके बाद A31 कैलकुलेट करेंगे। A31 मतलब द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो साइन क्या है प्लस M31, तो ये आपका आएगा सब डिटरमिनेंट लगाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 3 -2 1, तो ये आपका कितना हो गया 3 माइनस और ये -6, तो ये कितना आएगा 3 + 6, ये आपका 9 आ गया। फिर उसके बाद A32 के लिए साइन आपका माइनस है और उसके बाद M32, तो माइनस, उसके बाद सब डिटरमिनेंट लिखेंगे, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1, उसके बाद आपका इधर 3 1, ये आएगा -2 -3, तो ये आएगा आपका -1 और +1। फिर उसके बाद A33 के लिए साइन आपका प्लस है, M33, और ये आएगा सब डिटरमिनेंट, तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 1 -2, और ये आएगा -4 -3, ये -7 आपका आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है, जितने भी कोफैक्टर्स निकाले हैं उन सबका मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो A11 हमने कैलकुलेट किया 5, ये भी आपका 5 है और इधर ये भी 5 है, तो उसके बाद ये आपका 3 है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है दिस इज -13, फिर उसके बाद आपका 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 1, उसके बाद आपका क्या है -7, उसके बाद इसका ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपका कितना आएगा, फर्स्ट रो ये जो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, मतलब 5 5 5, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 -13 11, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा तो 9 1 और -7, ये आपका डिवाइडेड हो गया। अब उसके बाद जो A इनवर्स होगा वो आपका होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो एडजॉइंट A आपका कितना है 5 5 5, और ये आपका 3 -13 11, और ये आपका 9 1 -17, और इधर आपका क्या है कि डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया था कितना 40, ये आपका इनवर्स आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं सिंस AX दिस इज इक्वल टू B, A इनवर्स आपका निकाल लिया है तो इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दिस इंप्लाइज दैट X दिस इज इक्वल टू A इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए X के स्थान को हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स, मतलब जो बनाए थे X Y Z, और A इनवर्स कैलकुलेट किया है कितना है 1/40, और इधर आपका 5, ये 5, इधर ये भी 5, ये 3, ये -13, ये 11, इधर आपका 9 1 -7। उसके बाद आपका क्या है कि जो बी मैट्रिक्स था वो आपका कितना था 5 -4, और इधर आपका ये। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट, मतलब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 × -4 -12, उसके बाद 9 × 3 +27, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका इधर 5 × 5 25, देन ये आपका है -13, और ये आपका -4, देन प्लस 52 1 × 3 +3, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 25 हो गया,
ये आपका कितना 11 इंटू -4 मीन्स -44 और ये आपका -7 इंटू 3 -21। तो जब आप इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 1/40 और उसके बाद देखिए आपका 25 माइनस आपका 12 13 और 13 और 27 ये आपका 40 हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 25 एंड 3 28 28 एंड 52 ये आपका 80 हो गया। और इधर आपका 25 माइनस 21 plus 4 minus 44, so this is the minus 40 1/40 this is equal to 40 upon 40 means 1, 80 upon 40 this is the 2, minus 40 this is the minus 1, and here you have to see this is the x, y and z. Here you have to see when you are going to compare, then what we will get, x equal to 1, y equal to 2 and z equal to -1. This is the value of x, y and z. ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 15 है। 14 बिल्कुल 13 की तरह सिमिलर था, तो दैट हैव टू डू। सो फॉर 15 दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन, इफ A this is matrix, find A inverse and using A inverse solve the system of equations. These three equations are given, we want to solve. So solution have to see. This matrix A is given A, this is equal to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए फिर आपका वही पुरानी प्रॉब्लम है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसका आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा, तब एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अगर हम लोग इसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालेंगे, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो आपका कितना आएगा, ये 2 minus 3 5, इधर आपका 3 2 minus 4 1 1 minus 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन प्लस बनाएंगे, ये तो जानते हैं आप लोग, यहाँ माइनस और ये आपका प्लस। तो यहाँ लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2। उसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर बनेगा, तो कितना 2 -4 1 -2, और उसके बाद माइनस साइन ऊपर है तो -3 दिया है, तो इन ब्रैकेट -3। उसके बाद क्या करेंगे, सब डिटरमिनेंट बनाएंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम आपका नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा 3 1 -4 -2। फिर उसके बाद आपका +5। उसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 3, इधर 1, ये 2 और 1। तो ये आपका कितना आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस ऑफ -4 इंटू 1 -4, एंड इधर आपका माइनस इंटू माइनस ये प्लस आपका 3 हो गया, इधर 3 2 -6 माइनस इधर आपका 4, उसके बाद ये 5, इधर 3 -2। तो ये आपका कितना आएगा 2 -4 माइनस +4, इधर आपका 3, ये आपका -6 +4, इधर आपका आएगा 5 इंटू 1। तो ये आपका +4 -4 मतलब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो 0 +3 -2 और ये 5, तो ये आपका कितना आ गया -6 और ये 5, तो क्या आ गया -1। तो इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका -1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए आपका क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, हेंस ए इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो फॉर कोफैक्टर्स
ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए साइन और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और इधर आपका ये प्लस। तो अगर मान लीजिए कि A11 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब आपका क्या 2, तो इसके लिए आपका होगा साइन प्लस, उसके बाद माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो कि आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2 -4 1 -2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 -4, तो ये आएगा आपका -4 + 4 मतलब ये 0। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A12 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम साइन है माइनस का, -M12 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये कितना होगा माइनस, उसके बाद फिर वही सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम नहीं रहेगा। तो 3 एक इधर बचा और इधर आपका कितना बचा था 4 -2। तो ये आपका कितना आएगा माइनस, ये -6 माइनस और ये -4, तो ये आएगा -6 + 4 या ये आएगा -2 मतलब +2 आ गया। फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे A13। तो A13 कैलकुलेट करने के लिए आपका साइन क्या है प्लस का, तो प्लस M13। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जो कि आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 3 2 1 1। तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज द 3 -2 और ये आपका 1 आ गया ये। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A21 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ये आपका 3 का 3 के ऊपर लगा है साइन -M21। तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, उसके बाद सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका दूसरी रो और पहला कॉलम नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या -3 और नीचे आपका 1 -2। तो ये आपका कितना आ गया माइनस, उसके बाद आपका ये 6 -5, तो यहाँ पे आएगा ये -1। फिर उसके बाद A22। तो A22 के लिए साइन आपका प्लस हो जाएगा M22 और ये आपका कितना आ जाएगा, सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं रहेगा, तो बचेगा कितना 2 और इधर आपका ये 5, इधर 1, इधर आपका -2। तो ये आपका कितना आ जाएगा -4 और ये -5, तो -9 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A23 मीन्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम मीन्स -4 के ऊपर साइन लगा है -M23। तो ये कितना आएगा माइनस, उसके बाद सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 2 -3 1 1। तो ये आपका कितना आ गया माइनस, उसके बाद 2 माइनस और -3, तो ये आपका कितना आ जाएगा -2 + 3 मीन्स दिस इज द -5। अब उसके बाद निकालेंगे A31 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये आपकी थर्ड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, साइन आपका प्लस है, तो यहाँ प्लस M31 मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये कैसे मिलेगा आपका, हम लोग थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे -3 और ये 5 और ये 2 -4। तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा -10, तो ये 2 आ गया। फिर उसके बाद A32 मतलब साइन -M32, ये आपका आएगा, सब डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम नहीं रहेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3, उसके बाद आपका 5 -4, तो यहाँ साइन माइनस है तो माइनस, तो ये आपका -8 -15 और ये हो जाएगा +23।
this is the minus 23, and then this is the sign changes, so plus 23, and then last one a33, this is equal to sign plus, so plus m33, this is equal to subdeterminant after leaving third row and third column, so this is the 2 3 minus 3 and 2, so this is the 4 minus and minus 9, so this is equal to 4 plus 9, this is the 13. अब हम लोग क्या निकालेंगे कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए जितना कोफैक्टर्स निकालेंगे उन सब का मैट्रिक्स बना के क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा a11 0, a12 2, उसके बाद आपका है 1, फिर -1 -9 -5 2 23, उसके बाद आपका 13, और इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज. तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, मतलब आपका 0 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा -1, उसके बाद आपका -9 -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा मतलब 2, उसके बाद आपका 23, फिर उसके बाद आपका 13. अब ए इनवर्स निकालने के लिए तो ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ए आपका यही है 0 -1 2, फिर उसके बाद आपका 2 -9 23, फिर उसके बाद आपका कितना है 1 -5 और 13. फिर उसके बाद हमने डिटरमिनेंटल वैल्यू मैट्रिक्स की कैलकुलेट की थी, वो कितना था -1. तो अब क्या होगा कि सबका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 0, ये आपका दैट इज बिकम 1, ये आपका -2, ये भी -2, ये 9, ये -23, ये -1, ये +5, ये -13. ए इनवर्स निकाल लिया. अब उसके बाद क्या करेंगे कि वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स वी वांट टू सॉल्व. सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड इन दैट फर्स्ट वन दिस इज गिवन 2x -3y plus 5z दिस इक्वल टू 11. ये मान लिया आपका पहला इक्वेशन है. सेकेंड आपका क्या दिया था, दिस इज द 3x plus 2y minus 5z इक्वल टू -5, ये सेकेंड इक्वेशन है. और थर्ड क्या दिया था, x plus y minus 2z दिस इक्वल टू -3, इक्वेशन आपका थर्ड है. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. तो मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे कि जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स. तो ये 2 -3 और ये आपका 5, और ये आपका है 3, ये 2 -4, इधर आपका है 1 1 -2, और ये आपका क्या है कि इधर आपका जो वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 11 -3 -5 -3. अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो आपका बना है मैट्रिक्स, जो कि आपका कोफिशिएंट वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट उनसे बना है, और रियल में आपका क्या है मैट्रिक्स है. तो इसको हम लोग मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, और इसको आपका एक्स लिख रहे हैं, और ये आपका बी लिख रहे हैं. तो आपका ये क्या हो गया, ए एक्स दिस इक्वल टू बी. अब उसके बाद देखते हैं एक्स को लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है. ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ये है, लिखते हैं यहाँ पे 0 1 -2 -2 9 -23
-1 5 -13। और उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स बी है वो आपका कितना है 11 -5 -3। और इधर आपका x के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या x y और इधर आपका z। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 11 मीन्स 0, 1 इंटू -5 मीन्स -5, 2 -2 इंटू -3, देन दिस इज बिकम +6। और उसके बाद आपका ये होगा -2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 11 -22, 9 मल्टीप्लाई बाय -5 -45, and then -23 multiplied by 3, so this is become 69 plus 69। अब उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 11 -11, 5 मल्टीप्लाई बाई -5 -25, और उसके बाद आपका -13 मल्टीप्लाई बाई -3 तो +39 आपका हो जाएगा। इधर क्या है ये x है, ये y है, ये z। अब ये आपका क्या हो जाएगा -5 + 6 मतलब 1, और ये आपका कितना हो जाएगा दिस इज द 7 एंड देन दिस इज द 6 -67 एंड ये आपका हो जाएगा 2, और इधर आपका कितना हो जाएगा दिस इज द 6 and then this is the 3 means -36 + 39 means this is the 3। तो ये आपका कितना हो गया x हो गया, इधर y हो गया, z हो गया। जब कंपेयर करेंगे तो x = 1 आएगा, y = 2 आएगा और z = 3। यही आपकी x y z की वैल्यू है। Here you have to see this is the problem number 16. This is the word problem. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60, full stop. Then the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. Third one what is given, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find cost of each item per kg by matrix method. Here it is सी 3 आइटम्स आर गिवन। फर्स्ट ओनियन है, सेकेंड आपका व्हीट है और थर्ड क्या है राइस है। और आपका 3 स्टेटमेंट दिया है कि 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस कितना है ₹60। इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका सेकेंड जो स्टेटमेंट है उससे एक इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड जो आपका है उससे एक इक्वेशन बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड से उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन है आपको सी, let cost of 1 kg onion this is equal to x rupees and cost of 1 kg wheat सेकेंड आपका दिया है तो wheat का मान लिए ये आपका रुपीस कितना है ₹y। फिर उसके बाद आपका क्या है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस दिया हुआ है वो आपका क्या है रुपीस, आपका कितना है z। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला जो इक्वेशन आपका बनेगा वो आपका होगा 4 kg ओनियन दिया है और 1 kg का कॉस्ट आपका कितना है x रुपीस, तो 4 kg का कॉस्ट कितना होगा 4x। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि 3 kg व्हीट है, 1 kg व्हीट का प्राइस आपका कितना है y रुपीस, तो 3 kg का कितना हो जाएगा 3y। फिर उसके बाद आपका क्या है 2 kg राइस दिया हुआ है, 1 kg राइस का प्राइस कितना है z, तो 2 kg का कितना होगा 2z।
और इन सब का जो सम, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, और तीनों का सम कितना दिया है ₹60, मतलब ये आपका 60, तो यहाँ पे ये साइन प्लस, यहाँ पे आपका प्लस, मान लीजिए इक्वेशन 1। ऐसे सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, क्या है 2 kg ओनियन है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर वही प्लस साइन, और 4 kg व्हीट दिया है तो 4y हो गया, और फिर इधर आपका 6 kg राइस, तो 6z इक्वल टू कितना, ये आपका 90 रुपीज बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, 6 kg ओनियन वहां पे दिया हुआ है तो आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 kg व्हीट दिया है तो 2y, और उसके बाद आपका राइस 3 kg दिया है तो 3z, दिस इक्वल टू कितना होगा 70, ये आपका तीसरा इक्वेशन। तो अब हमने क्या किया कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या किया, उसको फॉर्मुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए बहुत पिछली प्रॉब्लम्स हम लोग किए थे कि जो आपका वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उससे एक इक्वेशन बनाते थे, बनाते हैं। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इधर आपका ये 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, ये 4 हो गया, इधर आपका 6 हो गया, फिर उसके बाद इधर आपका 6 हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका 3 हो गया। एक इक्वेशन इससे बना, और जो आपके वेरिएबल्स हैं उसको एक कॉलम फॉर्म में लिखते हैं एक्स, वाई और जेड, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 60, ये 90 और 70। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स आपका क्या है, ए है, ये मैट्रिक्स आपका बी है, ये मैट्रिक्स क्या है सी, तो सॉरी ये मान लीजिए आपका क्या है एक्स है, और ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए आपका बी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स दिस इक्वल टू बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो आपका मैट्रिक्स है इसकी सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका डिटरमिनेंट आएगा इसको एक्सपैंड करेंगे किसी एक रो या कॉलम के लॉन्ग, मान लीजिए R1 लेते हैं, तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो R1 के लॉन्ग जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, ये साइन वी आर मेकिंग प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस, तो 4, उसके बाद सब डिटरमिनेंट बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 4 6 2 3, साइन ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा 3 का, फिर उसके बाद आपका कितना आएगा, सब डिटरमिनेंट बनाएंगे जो कि आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 6 6 3, फिर उसके बाद प्लस 2, सब डिटरमिनेंट बनाएंगे जो कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 4 6 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं तो कितना आएगा, ये इक्वल टू आपका 4, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द 12, और उसके बाद दिस इज द -12, देन -3, ये आपका 6 आ जाएगा, -36, फिर उसके बाद आपका क्या 2, यहाँ पे आपका कितना आएगा 4, फिर उसके बाद दिस इज द -24। तो अब ये कितना आएगा देखिए जरा, 12 -12, ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना आएगा -3, और ये आपका हो जाएगा -30, और इधर आपका आएगा +2, और ये आपका आ जाएगा -20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 90, और ये आपका कितना आएगा -40, तो ये आपका कितना 50। मतलब क्या कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपका 50 आ गया, और डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या है, ए नॉन सिंगुलर हो गया। जब आपका ए नॉन सिंगुलर हो गया तो ए इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट्स का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा।
तो अब कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे साइन और बनाते हैं, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अगर आपका क्या हो कि A11 ये क्या हो, कोफैक्टर है एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो पहला एलिमेंट है वो कितना है आपका 4 है, तो ये आएगा साइन क्या बनाया है प्लस, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब माइनर कैसे निकालते हैं हम सब लोग जानते हैं, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और ये 6 आ गया, इधर 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 12, ये आपका 0 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो आपका 3 है, 3 के ऊपर माइनस साइन लगा है, तो माइनस M1 2, ये आपका हो जाएगा माइनस, सब डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा आपका 2 6 आएगा, उसके बाद इधर 6 3 आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस आएगा, ये 6 हो गया, ये माइनस 36 हो गया, तो ये माइनस 30 मीन्स प्लस 30 ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A13, तो A13 मतलब द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम में साइन आपका प्लस बनाया है, प्लस माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपका कितना हो गया सब डिटरमिनेंट जिसमें आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 2 और इधर 6 आएगा, इधर 4 इधर 2, तो ये आपका कितना हो गया 4 माइनस 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 20। फिर उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे A21 मीन्स को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, अब उसके ऊपर साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस M21, तो ये आएगा माइनस, सब डिटरमिनेंट लगाएंगे जिसमें आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 3 2, इधर 2 3, तो ये आएगा माइनस 9, दिस इज द 9, और ये आपका 4, तो आएगा ये माइनस 5। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A22 मीन्स द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम मीन्स प्लस 4 है, तो प्लस M22, ये कैसे आएगा, हम लोग क्या करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 4, और इधर आपका 6 आ रहा है, इधर 2 और 3 आ रहा है, तो ये आपका कितना हो गया 12 माइनस 12, ये 0 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A23, तो A23 कैलकुलेट करने के लिए साइन आपका क्या है माइनस है M23, तो ये आएगा सब डिटरमिनेंट जिसमें आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 4 3, उसके बाद आपका 6 2 आएगा, तो ये कितना हो गया माइनस साइन यहाँ पे, तो माइनस 8, और उसके बाद ये आपका कितना है माइनस 18, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 10 मीन्स प्लस 10। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A31, तो A31 के लिए साइन आपका प्लस M31, ये आपका आएगा सब डिटरमिनेंट जिसमें आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 3 2 और 4 6, ये आपका कितना आ गया 18 माइनस 8, ये आएगा प्लस 10, ये भी आएगा। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे A32 मतलब को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो ये आपकी थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम, ये आपका साइन मतलब ये आपका है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि माइनस साइन है, तो ये आपका कितना माइनस, अब उसके बाद आपका क्या है माइनस M32, अब उसके बाद आपका क्या है कि ये कितना हो जाएगा माइनस M32, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2,
4 2 और इसके बाद आपका 2 6, तो ये आपका आ जाएगा -24 -4, ये आएगा -20। लास्ट में A33 मीन्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपकी थर्ड रो है और ये आपका थर्ड कॉलम है, मतलब ये 3 का निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा +M33। तो ये आपका आएगा सब डिटर्मिनेंट जिसमें आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 4 3 2 4, तो ये आपका आएगा 16 -6, तो आएगा ये 10। तो अब ये देखिए क्या है कि सब हमने कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का निकाल लिया है मैट्रिक्स ए का। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालने के लिए जितने कोफैक्टर्स आए हैं उन सब को लिख उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकेंड निकाला था 30, फिर उसके बाद आपका -20, फिर उसके बाद आपका -5, फिर उसके बाद आपका 0, फिर इधर आपका 10 था, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 है, फिर उसके बाद अभी -20, फिर उसके बाद आपका 10 इसका ट्रांसपोज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो 0 30 -20, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा -5, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 10 -20 10। एडजॉइंट हमने निकाल लिया, अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर आपका क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए कितना है आपका, ये 0 -5 10, ये 30 0 -20 -20 10 और 10। उसके बाद डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स से हमने निकाला था वो आपका कितना था 50। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1/50, उसके बाद ये आपका 0 -5 10, ये 30 0 -20, ये -20 10 और 10। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ये था सिंस ax = b था, दिस इंप्लाइज दैट क्या था x दिस इक्वल टू a इनवर्स b। तो x के स्थान पे हमको क्या लिख सकते हैं x y z, और इधर आपका a इनवर्स कैलकुलेट किया है कितना 1/50, उसके बाद मैट्रिक्स 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। उसके बाद आपका क्या था कि जो मैट्रिक्स बी था वो आपका कितना था 60 था, फिर उसके बाद आपका कितना था 90 और ये 70 था। अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे 1/50, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 0 × 60 मीन्स 0, -5 × 90 तो -45 और 0 450, और उसके बाद आपका 10 × 70 मतलब दिस इज द 700। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 00 36 18 मीन्स 1800 ये हो गया 0, और -20 और ये आपका 70, तो ये -1400 हो गया। फिर उसके बाद ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -20 × 60 ये 1200 हो जाएगा -1200। फिर उसके बाद आपका 10 × 90 900, 10 × 70 ये 700 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/50, उसके बाद आपका ये 700 - 450, तो ये आपका कितना आ जाएगा दिस इज द 250, और ये आपका 1800 और ये 1400, तो ये आएगा 400, और ये आएगा 1600 और ये -1200, तो ये भी आपका 400 आ गया।
अब 1/50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 5, ये आएगा 8, ये आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब आपका क्या है कि जो x की वैल्यू है वो आपका क्या है 250, सॉरी x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई, y की जो वैल्यू है वो 8 आ गई और z की वैल्यू जो है वो भी 8 आपका 8 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्या है कि पर केजी ओनियन का जो कॉस्ट है वो ₹5 है और पर केजी आपका जो व्हीट का जो प्राइस होगा वो रुपीस कितना होगा 8 होगा और पर केजी जो आपका राइस का प्राइस होगा वो कितना होगा 8 रुपीज होगा। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन दिस इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया ₹5। कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, ये आपका हो गया ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, ये भी कितना हो गया ₹8। तो ये आपका आंसर है 588।